Good morning, everyone. Athena Behavioral Health is celebrating Mental Health Awareness Month. So we have our esteemed psychiatrist on our panel today. So today's topic is caregiving burden, and I would like Dr. Ashish Mittal to put some light on the topic. Hello, everybody. My name is Dr. Ashish Mittal. First, I will like to introduce today's team, which is participating in this panel discussion. Purnima is the clinical psychologist. She is moderating the session. And Dr. Vinay Saini, he is MD from Nimhans, Bangalore. After that, he did his SRship, Senior Residency from AIMS. And after that, he was associated with Haryana government as a consultant psychiatrist. And now he is center head of the female only facility, which is Athena Okas in Sector 39, Gurgaon. So welcome, Dr. Vinay Saini in this panel. Thank Then you so much. we have Dr. Rahul Rai. Dr. Rahul Rai has done his post-graduation in psychiatry from Santosh Medical College, Ghaziabad. After that, he has worked with Government of India in Tihar Jail as a consultant psychiatrist. He had treated over there well-known, not well-known, bad-known politicians uh, and the bad persons of the society, criminals. So he had experience dealing with them and some with innocent prisoners also. So he had rich experience over there, and after that he was working as a consultant in Gurgaon in Narayana Hospital, and now he is center head of the Athena Behavioral Health 202 Sector 47 Gurgaon. So welcome Dr. Rahul Rai in this panel discussion. After that, we have consultant psychiatrist Rahul Gupta, who has done his MD psychiatry from Rajasthan, and he is also in Athena Behavioral Health 202 Sector 47 Gurgaon. Isha Patidar, she is our female consultant psychiatrist in Athena Okas, which is again female only facility in India. So I welcome you all in this panel discussion. And the Thank you, topic sir. of this uh, panel discussion is about spreading mental health awareness in the general society. In my month, we are celebrating Mental Health Month. So mental health is very important for overall well-being of the society. As per WHO definition, the health of the person is not only physical health, is defined as total physical, mental, and social well-being. So WHO defined good health in this way, and uh, most of the population is aware about the physical health. कि उनको कोई भी परेशानी होती है, बुखार होता है और खांसी, जुकाम, पेट में दर्द, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो जनरल पॉपुलेशन इज वेल अवेयर अबाउट द फिजिकल हेल्थ. Even doctors of the different specialties are almost aware about the uh, physical health related to all specialties. But mental health is the area in which not only population is unaware about the illnesses, even doctors who are not psychiatrists or psychologists, even they are not aware about the mental health or different kind of psychiatric illnesses. I remember my MBBS time, the most difficult subject for a student uh, to read and learn was psychiatry, because it is a complicated science. It deals with the human behavior and thoughts and perceptions. So, so you get very little time to experience it. You will very get little time to see the patient, psychiatric patient, and you get very few lectures in MBBS time. So, person who are different specialty got exposure to the psychiatry only in the MBBS. So that's why even the doctors are not aware about the psychiatric illness. With this, the WHO decided to celebrate my month as a mental health awareness month. So reason for that, to spread the awareness about the psychiatric illness, mental health issues, because
nobody know what is the mental health and when to seek treatment for it and whom to approach. तो इसीलिए ये मेंटल हेल्थ मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। और इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से आज हमारा एम रहेगा कि हम पॉपुलेशन को एक सिंपल वे में बता सके व्हाट इज मेंटल हेल्थ, कब उनको ट्रीटमेंट सीख करना है और कब वो ट्रीटमेंट में आ सकते हैं, कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सो विद दैट पूर्णिमा, अब आप आगे जा सकते हैं और जो जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सर, मैं कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें केयर गिविंग बर्डन के ऊपर, केयर गिविंग स्ट्रेस के ऊपर, जो कि अपनी परिवार में लोग देख रहे होते हैं, जो जिन लोगों के घरों में साइकाट्रिक इलनेस या कोई और भी क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट्स हैं, वो लोग कैसे केयर गिविंग स्ट्रेस और केयर गिविंग बर्डन से जूझ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बात करें। देखिए, केयर गिवर बर्डन दो तरह से होता है। एक तो जो पेशेंट के सिम्टम होते हैं, वो जिस तरह से पेशेंट बिहेव करता है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो वो काफी बार समझ ही नहीं पाते और काफी बार पेशेंट वायलेंट भी हो जाता है फैमिली मेंबर्स के लिए, तो ये सारा उनको सहन करना पड़ता है। दूसरा, पेशेंट की बिहेवियर की वजह से पेशेंट कुछ काम नहीं कर रहा होता है और उसकी वजह से एक फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाता है फैमिली पे, एक एक्स्ट्रा। और फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है ना केवल पेशेंट के काम नहीं करने से, दूसरा पेशेंट का इलाज कराने से भी, कि पेशेंट को उनको ओपीडी में लेके जाना है, उनका इलाज कराना है, या बहुत सीवियर इलनेस है तो पेशेंट को एडमिट कराना है। तो एक तरह का पेशेंट के बिहेवियर की वजह से केयर गिवर बर्डन काफी रहता है, और दूसरा पेशेंट के काम नहीं करने से और इलाज कराने से एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट पे काफी आता है। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से केयर गिवर्स को साइकेट्रिक इलनेस अफेक्ट करती है। दूसरा, केयर गिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि इसको आइडेंटिफाई करना, साइकेट्रिक इलनेस को, अगर आपकी फैमिली में किसी को है, अगर आप जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे और जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे पेशेंट का, तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और इवन फंक्शनल रिकवरी, कि पेशेंट ठीक होने के बाद काम कर पाए, ये भी काफी अच्छी होती है। जैसे सीजोफ्रेनिया, जो केसेस विद इन 6 मंथ की अगर ट्रीटमेंट में आ जाए तो वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेशेंट। और अगर वो दवा रेगुलर रखें तो मैंने देखा है कि वो लोग अपना जॉब भी सस्टेन कर पाते हैं और अपनी मैरिज लाइफ को भी सस्टेन कर पाते हैं। और ऐसे ही पेशेंट, दूसरी तरह के पेशेंट जहाँ पे केयर गिवर्स बहुत प्रोएक्टिव नहीं है और पेशेंट का ट्रीटमेंट इरेगुलर हो जाता है, वहीं पे मैं देखता हूँ कि पेशेंट अपनी दवाइयां छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं लेते, उनकी बीमारी दोबारा बढ़ जाती है। अब जब बीमारी बढ़ जाती है तो पेशेंट काम भी नहीं कर पाता, तो फिर केयर गिवर्स का बर्डन डबल ट्रिपल बढ़ जाता है, कि वो पेशेंट से बिहेवियर से भी दोबारा अफेक्ट होते हैं और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आ रहे हैं इसकी वजह से उससे भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके फैमिली में कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करें। तो इसके पास, मेरे पास दो एग्जांपल है जो रिसेंटली मेरे पास पेशेंट आए हैं। एक यंग फीमेल आई थी 32 ईयर्स की, तो वो गुड़गांव में रहती थी, उसका भाई यंगर ब्रदर 25 साल का, वो राजस्थान में रहता है अपनी माँ के साथ। माँ की भी अब एज हो रही है, तो केवल दो ही मेंबर है, बहन और ये भाई, भाई जिसको बीमारी है। अब माँ भी बीमार हो रही है और भाई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, सीजोफ्रेनिया की बीमारी है, 5 साल से उसको बीमारी चल रही है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। तो अब सिस्टर आई हमारे पास केस डिस्कस करने की, सर ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो वही हमने फैमिली को साइको एजुकेट किया ढंग से, बीमारी के बारे में बताया और क्या प्रोग्नोसिस है बीमारी का उसके बारे में बताया, और ट्रीटमेंट डिले करना कितना पेशेंट के लिए खतरनाक है ये इनको समझाया। और उसको ये भी समझाया कि फ्यूचर में वही केयर गिवर है पेशेंट के लिए, क्योंकि मदर अब उनकी एज हो रही है उनकी, वो पेशेंट को अब नहीं संभाल पाएंगी कुछ समय के बाद, और उसके बाद सिस्टर को ही पेशेंट को संभालना है। अगर ऐसे ही आजकल तो छोटी फैमिली होती है, एक या दो ही भाई बहन होते हैं, अगर आपके किसी भी ब्रदर या सिस्टर को इलनेस है तो फ्यूचर में आपको ही संभालना है। तो लोगों को आज जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी अपने फैमिली मेंबर को ट्रीटमेंट में लाएं। अगर आपके माँ बाप हैं तब भी वो आपको ही संभालने हैं,
तो उनको जल्दी से ट्रीटमेंट में लाएं जिससे कि सिम्टम ठीक हो सके। इसके अपोजिट एक केस मेरे पास 10 साल से आ रहा है, और जो पर्सन है वो आईआईटी ग्रेजुएट है और उसको 30 साल से बीमारी है। उसकी वाइफ भी जॉब करती है, लेकिन उसके केस में क्या हुआ कि एयरफोर्स में वो जॉब कर रहा था। जैसी बीमारी हुई, उन्होंने एयरफोर्स ने उसने जब भी ज्वाइन किया था, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। हालांकि उसको एयरफोर्स छोड़ना पड़ा फैमिली रीजंस की वजह से या दूसरे रीजंस, आई डोंट नो। उसके बाद उसकी वाइफ वर्किंग थी एंड शी वाज वेल अवेयर, वेल इन्फॉर्म, और उसकी वाइफ की वजह से नाउ ही इज टेकिंग रेगुलर ट्रीटमेंट इन लास्ट 30 years, and now he is totally fine. He is doing some small businesses also. हालांकि वो अपनी पूरी क्षमता, जो आईआईटी ग्रेजुएट है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा, लेकिन वो फुली इंडिपेंडेंट है और फुली फिट पर्सन है। डायबिटीज भी है फिर भी ही इज फुली फिट, और आज की डेट में वो खुद आता है दिखाने। और पिछले 4-5 साल में उसकी वाइफ 2 ही बार आई है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट खुद ही आता है। और वाइफ भी 2 बार जब आई है कि जब थोड़े से सिम्टम फ्लक्चुएट हो रहे थे, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हो रहे थे। तो यही डिफरेंस है कि जहां रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है और जहां रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। तो इसमें केयर गिवर्स का बहुत रोल रहता है, और केयर गिवर्स अपनी खुद ही हेल्प कर सकते हैं अगर वो पेशेंट का ढंग से ट्रीटमेंट कराए। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर राहुल राय से पूछना चाहूंगी कि वो थोड़ा सा लाइट डालें जो कॉमन मिसकंसेप्शंस और स्टिग्मास हैं सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके, पर्टिकुलरली केयर गिवर्स को लेके या उनके बर्डन को लेके। और दूसरी चीज कि कौन कौन से जनरल साइकेट्रिक कंडीशंस हैं जिससे कि कोई भी केयर गिवर, किसी भी केयर गिवर को कोई इलनेस का हमें अंदाजा लग सकता है। कौन सी ऐसी जनरल साइकेट्रिक कंडीशंस हैं? देखिए, बहुत सारे कल्चर्स में, सोसाइटीज में और रिलीजियस बिलीव्स के सेकेंडरी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ना होने के सेकेंडरी, मेंटल हेल्थ इलनेसेस को काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है और पर्सनल एंड सोसाइटी के कुछ सिचुएशंस का कई बार रिजल्ट या आउटकम भी समझा जाता है। इसीलिए कोई किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच नहीं करता और सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कहीं ना कहीं और भी बढ़ जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी इंडिविजुअल की और फिर फैमिली मेंबर्स की भी डिटेरियोरेट होती है। देखिए, केयर गिवर चाहे वो किसी भी इलनेस का हो, केयर गिविंग इज अ स्ट्रेसफुल जॉब। स्पेसिफिकली जब मेंटल हेल्थ होती है तो क्योंकि इसमें कुछ विजिबल फिजिकल इलनेस नहीं होती, तो बहुत हद तक इग्नोरेंस या अंडरस्टैंडिंग, कुछ पेशेंट का भी नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, उसमें इंसाइट ना होना, ये कुछ एड ऑन्स करता है जिससे कहीं ना कहीं केयर गिवर जो है वो बर्नआउट फील करता है, स्ट्रेस्ड फील करता है। और वो जब खुद ही अच्छे माइंडसेट में कहीं न कहीं नहीं हो पाता, तो एक गुड सपोर्ट नेटवर्क वो प्रोवाइड नहीं कर पाता। और जैसे एंग्ज़ायटी के कुछ बहुत कॉमन से सिम्पटम्स हैं, जैसे कि ईज़िली इरिटेबल फ़ील करना, एंगर आउटबर्स्ट बढ़ जाना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लगना या प्रोफ़ेशनल डिक्लाइन होने लगना इंडिविजुअल्स में, बच्चों की एकेडमिक्स हर्ट होने लगना, ये सब कॉमनली केयर गिवर्स में देखे जाते हैं। ओके, थैंक यू राहुल। जैसे राहुल ने बताया कि साइकेट्रिक इलनेस के सिम्टम आइडेंटिफाई नहीं होते, सिम्टम जिससे कि ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और केयर गिवर्स का बर्डन बहुत बढ़ जाता है। सेम रूप से ऐसे केयर गिवर, अगर आपके घर में किसी को साइकेट्रिक इलनेस है, तो दोस्तों उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि साइकेट्रिक इलनेस क्रोनिक इलनेस होती है। क्योंकि आपके घर में किसी को साइकेट्रिक इलनेस है तो आप उसके केयर गिवर हो। जैसे मैं हूं और मेरे किसी फैमिली मेंबर को, जो इमीडिएट मेरा फैमिली मेंबर है उसको साइकेट्रिक इलनेस है, तो मैं केयर गिवर हूं। अगर उसको कोई ज्यादा दिक्कत हो गई तो वो दिक्कत मेरे पे आने वाली है। तो केयर गिवर्स को मैं स्पेशली मैसेज देना चाहता हूं कि अगर उनके घर में किसी को साइकेट्रिक इलनेस है तो आप उसको इग्नोर ना करें। क्योंकि अगर हम इग्नोर करेंगे और वो दिक्कत बढ़ जाएगी तो केयर गिवर्स का बर्डन बढ़ जाता है। तो बर्डन बढ़ के किस पे आएगा? आप पर ही आएगा ऐसे केयर गिवर। तो ना केवल अगर ट्रीटमेंट डिले किया जाएगा तो पेशेंट की लाइफ खराब होगी, उसके साथ साथ केयर गिवर्स की भी लाइफ खराब होगी। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक यंग गर्ल आई थी, 32-33 साल की।
मैरिड थी, वो गुड़गांव में रहती थी, उसका एक सिंगल भाई था, वो राजस्थान में फैमिली रहती थी, और बस मदर ही थी फैमिली में। भाई को सिजोफ्रेनिया, जो कि एक बड़ी बीमारी होती है जिसको साइकोसिस भी कहते हैं, उसको साइकोसिस था और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था। तो अभी तक तो मदर उसको देख रही थी, अब मदर ओल्ड हो रही है, फ्रेजाइल हो रही है, तो मैंने उनको समझाया कि भाई को ट्रीटमेंट में लाने की बहुत जरूरत है, बिकॉज यू आर सिंगल सिस्टर और कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आप पर ही आने वाली है। अगर वो इस समय प्रोएक्टिवली काम करेगी और भाई रिकवर कर जाएगा, तो हो सकता है कि वो अपना जॉब भी कर पाए, या अगर जॉब नहीं भी कर पाता तो कोई अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो होती है, कम से कम वो उसको रेगुलर रूप से कर सके, और जो केयर गिवर पे जो बर्डन आने वाला है फ्यूचर में, वो कम से कम हो सके। ओके, पूर्णिमा, यू कैन गो अहेड। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर विनय सैनी से पूछना चाहूंगी कि सर कौन से रिसोर्सेज और सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हैं सोसाइटी में, और क्या हमारे पास कोई रेजिडेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो कि हम मेंटल नीड्स को सर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं केयर गिवर्स? थैंक यू। Thank you, Purnima, and I welcome everyone for this very nice discussion. कि ये एक इलनेस ऐसी इलनेस होती है जो कि एक व्यक्ति को होती है, जो कि विजिबल नहीं होती दूसरे फैमिली मेंबर्स को, लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से जो व्यक्ति में जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसकी वजह से वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरी फैमिली प्रभावित होती है। तो इसके अंदर एक केयर गिवर बर्डन जो है, एक अहम जो है उसका एक रोल होता है। अगर केयर गिवर बर्डन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसका असर जो है पेशेंट पे भी पड़ेगा, और उसका जो असर है बाकी फैमिली मेंबर्स पे भी पड़ेगा। Very nicely said, Dr. Sani. And what about the centers, treatment facility, inpatient centers? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले हमारा जो समाज, इंडियन सोसाइटी जो कि एक पहले जॉइंट फैमिलीज, अगर आपने देखा होगा, बहुत से लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, और उसकी वजह से एक सपोर्ट सिस्टम जो था हमेशा एक अवेलेबल रहता था, जिसकी वजह से कोई ऐसे इलनेस से होती थी तो उनके अंदर शेयरिंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि वो डिवाइडेड हो जाती थी अदर फैमिली मेंबर्स के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे अब समय, जैसे न्यू एक कल्चर जिसमें इवोल्व, जिसमें एक न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादातर जो है बढ़ रही हैं, तो उसमें वो सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं लैग कर गया है। तो इसलिए लोगों को जानना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा ऐसे इलनेसेस के अगर कोई पेशेंट है, तो आपको सबसे पहले वहाँ कोई नियर बाई आप कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट को आपको वहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। जो लोग अगर जिनको लगता है कि अगर उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल उसमें खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ के नियर अबाउट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं, जैसे कि अथेना बिहेवियरल हेल्थ एक ऐसा ही संस्थान है जो कि इस तरह के पेशेंट्स और उनके केयर गिवर के अंदर जो कि साइकेट्रिक समस्याओं के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट में और फैमिली मेंबर्स में, तो उनको हम लोग यहाँ पर अपने सेंटर्स में एड्रेस करते हैं। हमारा एक ये सेटअप ऐसा है जो कि ओपीडी और आईपीडी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अगर कुछ लोग अगर जो कि सेंटर पे आकर वो कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज भी जो है एथिना बिहेवियरल हेल्थ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह के सेंटर्स जो हैं आपको अप्रोच करना चाहिए, इस चीजों को छिपाना नहीं चाहिए। जैसा कि डॉक्टर आशीष ने कहा कि अगर आप चीजों को छुपाएंगे, अगर आप स्टिग्मा की वजह से इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, तो इट अफेक्ट्स द बोथ पेशेंट्स हेल्थ एंड द फैमिली मेंबर्स एंड द पर्सन हु इज अ केयर गिवर, मेन केयर गिवर है, उसकी हेल्थ भी उससे अफेक्ट होगी। ओके, वेरी नाइसली सेड डॉक्टर सैनी। ये डॉक्टर सैनी ने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि पहले जैसे जॉइंट फैमिली होती थी इंडिया में, और अभी धीरे धीरे फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं। तो इसलिए पहले क्या होता था कि किसी भी साइकेट्रिक इलनेस जब होती थी, स्पेशली जब सीवियर साइकेट्रिक इलनेस, जैसे कि कोई एक्यूट साइकोटिक एपिसोड आता है और जॉइंट फैमिली होती है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट अगर वायलेंट होता है तो घर में काफी सारे लोग होते हैं संभालने के लिए, कि वो लोग पेशेंट को संभाल लेते हैं, और घर में कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेंबर होता है कि जैसे 5 फैमिली मेंबर हैं, तो उनमें से 5 में से हो सकता है कि एक से पेशेंट का रेपो अच्छा हो, तो दवाई देने में वो कामयाब हो जाता है, रेपो डेवलप करने में वो कामयाब हो जाता है उस पर्सन से, और ट्रीटमेंट घर पे ही हो जाता है। लेकिन अभी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में क्या हो गया है कि क्योंकि 1-2 लोग ही घर में होते हैं, और उन दोनों से पेशेंट का रेपो खराब हो जाता है,
और पेशेंट अगर बहुत एग्रेसिव हो रहा होता है तो घर पे मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियर फैमिली में जो मेरा एक्सपीरियंस है, पेशेंट को एडमिशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि फैमिली संभाल नहीं पाती पेशेंट को घर पर। एंड जहां तक अथीना की बात करें, अब अथीना के 2 सेंटर हैं सेक्टर 47 में, जो सारी तरह के पेशेंट एडमिट करता है, और एक फीमेल ओनली फैसिलिटी है सेक्टर 39 गुड़गांव में, अथीना ओकस के नाम से। तो दैट इज वेरी गुड, जो कि अथीना ओकस फीमेल ओनली फैसिलिटी है। तो अभी सेम क्वेश्चन से मैं डॉक्टर राहुल राय से मैं पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर राहुल राय, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि अगर फीमेल को सेपरेट रखा जाता है मेल पेशेंट से, जैसे अथीना ओकस में अब पेशेंटों को ट्रांसफर कर दिया है आपके अथीना ग्रुप में, तो अभी आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? सर, जैसे बहुत सारे मेंटल इलनेसेस में बिहेवियरल इश्यूज के सेकेंडरी फीमेल्स अपनी हेल्थ, हाइजीन, इन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाती, इनसिक्योर, मेल प्रेजेंस में काफ़ी हद तक इनसिक्योर भी फील करती हैं। बहुत बार अपने कपड़ों का भी ध्यान, ठीक से अपने आप को प्रेजेंटेबल रख पाना भी कई बार इनके लिए संभव नहीं होता। फैमिली की भी काफ़ी हद तक एप्रीहेंशंस होती हैं कि क्या सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी। उन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिले हैं। फैमिली का एटीट्यूड भी, फैमिली भी कहीं न कहीं और कंफर्टेबल रहती है इस चीज़ में कि अगर फीमेल फैसिलिटी में ही फीमेल पेशेंट्स हों तो। यस, राइटली सेड। डॉक्टर विनय सैनी, व्हाट इज योर व्यूज? क्योंकि आप तो Sir, हेड कर रहे हो अथीना ओकस को, सेंटर हेड है वहाँ के। आई एम टोटली एग्री विद द डॉक्टर राहुल राय कि डेफिनेटली एक सेपरेट फीमेल फैसिलिटी होने से बोथ पेशेंट्स और जो उनके फैमिली मेंबर्स को कहीं ना कहीं एक सहूलियत या उनको एक एडवांटेज मिलता है। डेफिनेटली जो फीमेल्स जो होते हैं उनके लिए उनको एक प्राइवेसी मिलती है, उनको एक सेंटर पर रहना उनके लिए कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो जाता है। वे अपने आप को ज्यादा सिक्योर महसूस करती हैं कि उनको लगता है कि जो हमारा जो अथीना ओकस जो स्टाफ है वो भी सारा हमने जो फीमेल रखा हुआ है, तो उस रिगार्डिंग भी जो फीमेल पेशेंट्स को वहां पर काफी इजी रहना चाहता है, इजी रहना जो उनके लिए जो वहाँ का जो स्टे है वो आसान बन जाता है। एक सर मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, आफ्टर शिफ्टिंग फीमेल पेशेंट्स टू एक्सक्लूसिव फीमेल सेंटर्स, हमने देखा है कि कुछ रिजल्ट आउटकम्स, प्रोग्नोसिस भी थोड़े से और बेटर हुए हैं, क्योंकि सिक्योर अगर फीमेल महसूस कर रही है, उसका साइकोटिक कंपोनेंट, उसका सस्पिशियसनेस पार्ट जब कम हो जाता है, तो इलनेस में रिजल्ट आउटकम्स काफी बेटर है। यस Yes. यस, सेम थिंग आई एम आल्सो ऑब्जर्विंग। तो देखिए, जो दोस्तों, जब फीमेल ओनली फैसिलिटी होती है ना, तो फीमेल पेशेंट में 2 मेन इश्यू होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पेशेंट। तो काफी बार फैमिली हमारे पास आती है, स्पेशली जहां यंग फीमेल है, उनकी वरी होती है कि कहीं हम सेंटर में भेज रहे हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। बीमारी तो अलग बात है, जबकि साइकेट्रिक इलनेस में पेशेंट और वल्नरेबल हो जाता है, इसलिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यू फैमिली मेंबर्स को ज्यादा होते हैं। तो जो भी फीमेल पेशेंट के पेरेंट्स होते हैं, उनमें स्पेशली मैंने देखा है सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके काफी एप्रीहेंशन होती है, और फीमेल फैसिलिटी आने से ये एप्रीहेंशन काफी कम हो गई है। तो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है कि अगर कंबाइंड फैसिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं, यूजुअली तो मेल और फीमेल पेशेंट की, जहां अथीना 202 सेक्टर 47 में बात करें, हमने फ्लोर अलग अलग रख रखे थे पेशेंटों के। फीमेल पेशेंट को हम फर्स्ट फ्लोर पर रखते थे, बाकी जो मेल पेशेंट होते थे उनको दूसरी फ्लोर पर रखते थे। तो उस तरह से हमने पेशेंट का आइसोलेशन कर रखा था, फीमेल और मेल पेशेंट का। लेकिन जो कॉमन फैसिलिटीज हैं, जैसे ग्रुप सेशन जहाँ हो रहे हैं, या जो ग्रुप एक्टिविटीज जो हो रही है, या खाने का जो एरिया है जहाँ पेशेंट ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, वहां पे वो लोग इंटरेक्ट करते थे। क्योंकि पेशेंट वल्नरेबल होते हैं, तो इसीलिए जो दूसरी साइकेट्रिक इलनेस के पेशेंट हैं, अगर फीमेल पेशेंट उनसे कम्युनिकेशन ना करें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। तो एक दो केसेस में हमने देखा भी है कि फीमेल पेशेंटों ने दूसरे पेशेंटों के नंबर मांगने की कोशिश की है, या मेल पेशेंट ने फीमेल पेशेंट के नंबर मांगने की कोशिश की है, जिसको कि हमें एक्टिवली प्रिवेंट करना पड़ा सेंटर में। ओके, पूर्णिमा, यू कैन गो अहेड। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर ईशा से पूछना चाहूंगी कि मैम आप बताइए कि कैसे
केयर गिविंग बर्डन को मैनेज किया जा सकता है कुछ स्ट्रैटेजीज द्वारा, और अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको भी, उस सेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करते हुए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं केयर गिवर? थैंक यू। केयर गिवर्स जो होते हैं, सबसे पहले तो उन्हें समझना चाहिए जो प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे, कि बीमारी है क्या, उनके जो पेशेंट है उसकी बीमारी के बारे में उन्हें सारी जानकारी पहले तो लेनी चाहिए। बीमारी का प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा और ट्रीटमेंट कैसा चलेगा, और ट्रीटमेंट में उन्हें स्टिक होना चाहिए, कंटिन्यूस करवाएं और पूरा ट्रीटमेंट कराएं, जिससे पेशेंट ठीक रहे तो उनका भी केयर गिविंग बर्डन कम होता है उस चीज से। दूसरी चीज है, जैसे वो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं, वो उस स्टेट में नहीं रहते हैं कि वो नॉर्मली बिहेव कर सके या फिर वो चीजों को समझ सके, तो वो एक्सेप्टेंस आना चाहिए उन्हें अपने अंदर कि पेशेंट के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने रहेंगे। साथ ही साथ उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना है, जिसके लिए वो अपनी जो प्रोफेशनल वर्क है या अपना मेंटल हेल्थ है उसको भी प्रिजर्व करें। साथ इसके लिए उन्हें जो प्रॉपर अपना हॉबीज परस्यू कर सकते हैं, अपना फिजिकल एक्टिविटी, खुद का फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रख सकें। और Yes, nicely said, Dr. Isha. और And Dr. sir, Rahul. I want to add into the Isha's Yes, remark. Dr. Vinesh. अगर रिक्वायरमेंट हो तो जैसे कि हमने पहले ही से कह चुके हैं कि केयर गिवर बर्डन जो होता है, तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को एक एक्यूट स्टेबलाइजेशन की जरूरत होती है कि जो कि घर में पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं सभी जो भी ऐसे केयर गिवर हैं जो कि साइकेट्रिक इलनेसेस के पेशेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि एक्यूट स्टेबलाइजेशन के लिए अगर वो अपने पेशेंट को एथिना बिहेवियरल हेल्थ या एथिना को स्पेसिफिकली जैसे में जगहों पे आप एडमिट करते हैं, तो एक एक्यूट स्टेबलाइजेशन के बाद आप उनको कुछ समय के बाद अपने घर ले जाएंगे, फिर आप वहाँ पे आपको ऐसे पेशेंट को मैनेज करना आसान रहेगा। एक्यूट कंडीशंस के अंदर पेशेंट को घर पे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस कंडीशंस में आप पेशेंट को एडमिट कराने के लिए डेफिनेटली आप तैयार रहें और आपको कराना चाहिए, उसमें डिले नहीं करनी चाहिए। Yes, nicely said. डॉक्टर विनय सैनी, पेशेंट को एडमिट क्यों कराना पड़ता है? घर में सर, क्यों ना ट्रीटमेंट कर ले? आपने बिल्कुल सही पूछा सर कि क्यों और किन कंडीशन में एडमिट कराते हैं? सर, कुछ कंडीशन साइकेट्रिक कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट का घर पे रहना पेशेंट के लिए रिस्की हो जाता है, और कई बार ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से फैमिली मेंबर्स को भी पेशेंट से थोड़ा रिस्क हो जाता है। जैसे कि सर हम सिजोफ्रेनिया की बात करें, इसमें पेशेंट्स को कई बार डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस इस तरह से होते हैं। कई बार जो हेलुसिनेशन जो होते हैं वो अगेंस्ट जो उनको हेलुसिनेशन इस तरह कमांडिंग हेलुसिनेशंस होते हैं जो कि पेशेंट्स को कुछ एक्सट्रीम स्ट्रेस लिए वो मोटिवेट करते हैं। जैसे आई कैम अक्रॉस वेरियस पेशेंट्स इन द पास्ट डिफरेंट फैसिलिटीज जहाँ पे जो हेलुसिनेशंस हैं वो पेशेंट्स को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए या खुद को हार्म करने के लिए मोटिवेट करती हैं। इसके अलावा पेशेंट को डिल्यूजन्स भी हो जाते हैं जिसके अंदर वो अपने फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट ही कई बार डिल्यूजन डेवलप कर लेते हैं। उनको लगता है कि शायद उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं, उनको हार्म कराना चाहते हैं। तो ये ऐसे भी देखा गया है कि सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स के अंदर जब फैमिली मेंबर के अगेंस्ट ही डिल्यूजन डेवलप हो जाए तो वो फैमिली मेंबर्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर पेशेंट कई बार बहुत ही सीवियर मैनिक स्टेट में चला जाता है, बहुत ही ओवर टॉकेटिव, बहुत ही यू कैन से इरिटेबल, देयर इज लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज जिसकी वजह से पेशेंट को घर में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एंड इन द डिप्रेशन स्टेट, जब पेशेंट बहुत ज्यादा सुसाइडल हो, खुद को हार्म करना लगे, बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो वहां पर पेशेंट को एक्यूट स्टेबलाइजेशन के लिए भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। वेरी नाइसली सेड डॉक्टर विनय सैनी। तो अगर साइकेट्रिक इलनेस में देखें तो मेनली 3 इंडिकेशन होते हैं जहां पेशेंट को एडमिट किया जाता है। पहला, पेशेंट खुद को हार्म करने का रिस्क हो, सुसाइडल थॉट्स हो, आइडियाज हो, या वो अटेम्प्ट करे, या पेशेंट दूसरे को हार्म करे, पेशेंट बहुत ज्यादा वायलेंट हो, घर वाले को नुकसान पहुंचाने लगे, चाहे इलनेस साइकेट्रिक इलनेस कोई भी हो, चाहे कोई भी एडिक्शन प्रॉब्लम हो। तीसरा इंडिकेशन है पेशेंट की बीमारी इतनी बढ़ जाए कि जो उसकी डेली लिविंग की एक्टिविटी है, खाना पीना, नहाना धोना, वो उसको सस्टेन ना कर सके
और उसकी लाइफ को खतरा पैदा हो जाए। तो ये 3 मेन इंडिकेशन होते हैं जहां पे पेशेंट को एडमिट किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की इलनेस बहुत सीवियर हो गई है, वो घर पे ठीक नहीं हो पा रही, ऐसे केसेस को भी एडमिट करते हैं। और इसके अलावा सर ऐसे पेशेंट जो ट्रीटमेंट पे रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस को भी एडमिट किया जाता है। और सर इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो पेशेंट एडिक्शन डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके अंदर एक्यूट डिटॉक्सिफिकेशन फेज के लिए भी पेशेंट को एडमिट करने की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन फेज जो होता है, इनिशियल फेज होता है, वो घर पे रह के पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके अंदर एक सुपरवाइज ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। एंड वन मोर थिंग, कई बार पेशेंट कुछ ऐसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं जिसमें पेशेंट को रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे कि देयर इज वन डिसऑर्डर कॉल्ड द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो उसमें जैसे डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी जो होती है, वो एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा अगर रेगुलरली सेशंस लेकर की जाती है तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। कि ओपीडी बेसिस पे वो रेगुलरिटी और वो फ्रीक्वेंसी जो है इतना रेगुलर नहीं हो पाती है सेशंस की, तो ओपीडी बेसिस पे उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते जितने कि पेशेंट को एडमिट करके आते हैं। यस, और स्पेशली बॉर्डरलाइन पेशेंट में क्राइसिस इंटरवेंशन, जहां पेशेंट बहुत ज्यादा सेल्फ हार्म करने की टेंडेंसी रखता है, तो ऐसी क्राइसिस में भी उनको एडमिट किया जाता है। डॉक्टर राहुल, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कौन कौन सी साइकेट्रिक इलनेस में ज्यादा पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है? सर एक्यूट फेजेस ऑफ, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे मेनिया हो, या फिर सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड्स हो, उनमें सब में ज़रूर इनिशियल फेज में अगर कर ले तो रिजल्ट या प्रोग्नोसिस काफ़ी हद तक बेटर हो सकता है। अर्ली इंटरवेंशंस जहाँ भी शुरुआत हो जाए तो वहाँ पे रिजल्ट डेफिनेटली बेटर हैं। एक मैं सर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन तिहाड़ प्रिजन, तो एक स्किज़ोफ्रेनिक डायग्नोसिस बाद में बन पाया। खैर, आउट ऑफ सस्पिशियसनेस उसने अपने फैमिली मेंबर को ही हार्म करने की कोशिश करी, और जैसे ही वो अब हार्म ज़्यादा हुआ तो उस व्यक्ति ने फ़ोन नंबर पे कंप्लेंट करी, एफआईआर दर्ज हुई, उसको भेज दिया गया जेल। जबकि उसको पहले कभी उसका इवैल्यूएशन या ऐसा कुछ चीज़ नहीं, अवेयरनेस नहीं थी सर फैमिली में, या जो जो भी उसका क्लोज़ सर्कल ग्रुप था। अब अल्टीमेटली ही लैंडेड अप इन जेल अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। और जैसे-जैसे हमने उसको वहाँ बिहेवियरली ऑब्जर्व किया तो ही वाज़ डायग्नोज्ड टू बी स्किज़ोफ्रेनिक, और हिस्ट्री भी लगभग मोर देन 2 इयर्स की थी। बट अवेयरनेस ना होने के कारण, इनसाइट ना होने के कारण कभी ट्रीट हुआ नहीं। और अंदर भी जैसे अब वो आया ही फैमिली मेंबर के अटेम्प्ट टू मर्डर में था, तो कोई ना मुलाकात आती थी जेल में, ना कुछ, तो एक्सप्लोर करना भी काफ़ी टफ था। तो अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर अवेयरनेस प्रॉपर हो, अर्ली इंटरवेंशन हो, तो काफ़ी हद तक सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं सर, क्रिमिनल केसेज़ भी हैं जो सेकेंडरी टू मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस में लोग फँस जाते हैं। बट नहीं पता होता तो वो कहीं न कहीं उनको फेस करनी पड़ते हैं ट्रायल पेशेंट को। यस, डॉक्टर राहुल वेरी राइटली सेड। अच्छा, जो आपने सही बताया कि कोई भी साइकेट्रिक इलनेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें एडमिशन की जरूरत पड़ती है। और जो हमारा एक्सपीरियंस है अथीना में, जो कॉमन इलनेसेस हैं जिनके लिए पेशेंट एडमिशन लेते हैं, वो है साइकोसिस, इट मे बी सिजोफ्रेनिया, और मैनिक फेज। बहुत सीवियर ओसीडी में पेशेंट एडमिट ले रहे हैं, बहुत सीवियर डिप्रेशन जिनको हो रहा है, ऐसे पेशेंट एडमिशन ले रहे हैं। डी एडिक्शन के पेशेंट जैसे कि अल्कोहल, ओपियोइड, कोकेन, एमडीएमए, कैनाबिस, इनके बहुत सारे पेशेंट एडमिशन ले रहे हैं। और डे केयर की बात करें तो ऑटिज्म के पेशेंट डे केयर में आ रहे हैं। तो जो हमारा अथीना में एक्सपीरियंस है। अच्छा, पूर्णिमा, if you have some more question, you can go ahead. Yes, sir. Now I would like Dr. Rahul Gupta to shed some light on कि हम सोसाइटी और वर्क प्लेस पर कैसे मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस और फैला सकते हैं, और पर्टिकुलरली केयर गिवर्स के लिए भी, क्योंकि वो अपने वर्क प्लेस पे भी स्ट्रेस देख रहे होते हैं और अपने घर पे भी, क्योंकि कोई भी मेंटल हेल्थ इलनेस से पीड़ित कोई अगर व्यक्ति उनके परिवार में है, तो वो कैसे दोनों चीजों को बैलेंस करके चल सकते हैं, और हम वर्क प्लेस पे या अपनी सोसाइटी में उन्हें कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं केयर गिवर बर्डन की, केयर गिवर बर्डन तो डेफिनेटली भारत जैसे देश में है ही, लेकिन इसके अलावा केयर गिवर का जो है स्टिग्मा इतना ज्यादा है, वो फेस करते हैं। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट कम टू द फैसिलिटी।
तो सबसे अच्छी बात जो सर ने जैसे बताया कि एडमिशन के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, तो जो एथिना में हमने ऑब्जर्व किया है, जो देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इज गेटिंग एडमिटेड फॉर इवन 2 वीक्स और 3 वीक्स। तो उस दौरान अपार्ट फ्रॉम फार्माकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, हम एक फैमिली थेरेपी भी रखते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हैंडल करते हैं। उसका मकसद यही होता है कि नॉट ओनली द साइको एजुकेशन बट हाउ टू डील विद द केयर गिवर बर्डन एंड स्टिग्मा बोथ इन द सोसाइटी। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आए हैं जिनमें बिलोंगिंग टू वेल टू डू फैमिली बट स्टिल उनकी 20 साल 30 साल की हिस्ट्री थी पेशेंट की इलनेस की, और फैमिली हैज नो क्लू। फैमिली को ये नहीं पता था कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस और वेदर पेशेंट इज मेकिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन सच ए वे। तो वो यहाँ आने के बाद जब डिस्कशन हुआ, डायग्नोसिस हुआ, साइकोपैथोलॉजी को एक्सप्लोर किया गया, तो बहुत से डायनेमिक्स थे फैमिली में जो काफी कुछ इंडिकेट कर रहे थे, और फैमिली में भी बाद में ऐसा पता चलता है कि कुछ ना कुछ साइकेट्रिक इलनेस के ट्रेट्स रहे हैं जिनको ट्रीट करना काफी एसेंशियल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो केयर गिवर रहते हैं उनका स्टिग्मा इस बात को लेके भी होता है कि इफ दे एक्सेप्ट द इलनेस व्हाट इज नेक्स्ट, बिकॉज दे बिलीव कि फार्माकोथेरेपी आज स्टार्ट हुई तो जिंदगी भर चलेगी, साइकोथेरेपी आज स्टार्ट हुई जिंदगी भर चलेगी। दे डोंट नो द होलिस्टिक अप्रोच। तो एथिना बिहेवियर हेल्थ में आने के बाद या किसी भी रिहैब सेंटर में जाने के बाद दे रियलाइजेस कि बोथ द कंपोनेंट आर इंपॉर्टेंट। इट इज लाइक वी आर गिविंग फर्स्ट इज फार्माकोथेरेपी देन साइकोथेरेपी। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि फार्माकोथेरेपी तो सर डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखते हैं, घर पे भी हो सकता है, साइकोथेरेपी भी ऑनलाइन सेशंस हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उनको एक एनवायरनमेंट दिया, एक वातावरण वातावरण दिया जो शायद घर पे नहीं मिल सकता। और ये कई बार हमने देखा है कि बहुत से पेशेंट हैं जिनका 15 साल से 10 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था, अच्छी साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी, गुड कंप्लायंस, सब कुछ था, लेकिन फिर भी इंप्रूव नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना हमने काफी इंप्रूवमेंट उन पेशेंट्स में देखी है। उसका कारण यही है कि फैमिली डायनेमिक्स को या केयर गिवर स्टिग्मा को, बर्डन को एक तो हमने हैंडल किया है, दूसरा पेशेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया है जहां पे वो एक न्यूट्रल तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ को मेंटेन कर सके, बिकॉज इट इज नॉट द इलनेस विच इज डूइंग द डैमेज, it is already the society, it is already the stigma and the caregiver part which has already devastated the life of a patient। तो कहीं ना कहीं वो सब बातें रहती हैं। जहां तक बातें हैं वर्क प्लेसेस पे काम करने की या सोसाइटी में काम करने की, तो बहुत से केयर गिवर ये बड़ा मुश्किल पाते हैं कि हाउ टू हैंडल देयर ओन स्ट्रेस। जब फैमिली में किसी को खुद को जब ऐसी इलनेस हो जाती है और एडमिटेड है, तो खुद के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो उनके एक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको हम हैंडल करें, एक प्रोफेशनल हेल्प लें। दूसरा, स्टिग्मा इस बात का ना माने, क्योंकि इफ वी आर इंक्रीजिंग द स्टिग्मा देन वी आर क्रिएटिंग डेफिनेटली हर्डल्स फॉर आवरसेल्फ ओनली। अगर एक पेशेंट ठीक हो सकता है तो मान के चलिए पूरी फैमिली ठीक हो सकती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल ऑल्सो, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि वी आर ट्रीटिंग अ सिंगल पेशेंट ऑन द ओपीडी बेसिस, क्योंकि ओपीडी बेसिस पे फैमिली आती है, केयर गिवर्स आते हैं पेशेंट को लेके, गिविंग डिफरेंट डिफरेंट कंप्लेंट्स, और वी आर फोकस ऑन द पेशेंट ओनली। लेकिन जब आईपीडी एडमिशंस के बाद, एक्सप्लोरेशन के बाद काफी बार ये पाया गया है कि इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पेशेंट्स लाइफ, एक्चुअली द फैमिली के जो डायनेमिक्स हैं वो इतने हैम्पर हो चुके हैं, उसी की वजह से ना केवल पेशेंट परेशान है बल्कि केयर गिवर का इतना बर्डन बढ़ चुका है कि दे आर नॉट एबल टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द ट्रीटमेंट पार्ट। तो वो डिनाइल का जो एस्पेक्ट कहीं भी वर्क प्लेस पे हो या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हो, उसको हैंडल करना इसलिए भी एसेंशियल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट मे बी द इंडिकेटर ऑफ फर्दर साइकेट्रिक इलनेस इन द फैमिली। तो ऐसे केसेस में प्रोफेशनल हेल्प लें। केयर गिवर को लग रहा है कि उनके पेशेंट का इलाज चल रहा है, तो डेफिनेटली दे शुड टॉक टू प्रोफेशनल अबाउट देयर ओन मेंटल हेल्थ ऑल्सो। और ऐसा पाया गया है कि if the patient is having psychiatric illness then there are high chances of stress in the caregiver and which may be the chances कि वो co-dependence बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ सकता है यदि काम ठीक से नहीं करेंगे। और वर्क प्लेसेस पे ऐसा देखा गया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज डे बाय डे इतने इंक्रीज हो गए हैं कि even the mental health professional feeling the same thing, even the health professional feeling the same thing, but they are just in the denial mood to discuss all those things, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल स्टिग्मा है या खुद की सेल्फ आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग आगे आए, और बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, we should also motivate them to discuss their problems। even if we have one patient, we have 5 to 6 family members जिनसे हम बात करके उनके स्ट्रेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं। Yes, Dr. Rahul Gupta very nicely said कि केवल पेशेंट को ठीक करना जरूरी नहीं है, फैमिली इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी है। और
अथीना में ये यूनिकनेस है, वी focus very much on the family. We educate family about the illness, we reduce the stigma about the psychiatric illness which patient is having. We change this view of the family, and apart from that we identify कि जो family dynamics में कहाँ गड़बड़ है, जो patient के symptom थोड़े बहुत बढ़ा रही है या फिर treatment में कुछ भी तरह का problem create कर रही है. तो फैमिली को साइको एजुकेट करना, फैमिली थेरेपी सेशन लेना और कंप्लायंस इंश्योर करना, फैमिली की तरफ से भी, पेशेंट की तरफ से भी कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है. केवल पेशेंट को ठीक करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है. तो अथीना इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है. थैंक यू सर. मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए आज का जो पैनल डिस्कशन है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा हो. आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारा डिस्कशन ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच.